हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲੂਇਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਂਸੀ ਐਂਡ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ। ਬਾਇਓਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਇਓਂਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਂਸੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਬਾਇਓਂਸੀ, ਆਰਕੀਮਿਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਊਗਾ ਮੈਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਬਮਰਜਡ ਬੋਡੀ, ਐਂਡ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਤੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਲੈਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਇਓਂਸੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੀਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ। ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਪਲ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਮਰਜਡ, ਇਮਰਜ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਏ ਫਲੂਇਡ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਏ ਫਲੂਇਡ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਇਸ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਊਗੀ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ, ਬਾਇਓਂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ? ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ? ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਮਰਜਡ ਇਨ ਏ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਔਨ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਡਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਅਪਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵਟ ਕਾਜ਼ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ is the force on an object, object ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, exerted by the surrounding fluid। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਫਲੂਇਡ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ। when an object pushes water, the water push back with as much force as it can। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੈਕ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਐਜ਼ ਹਾਰਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਫਲੋਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੂ? ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਬੋਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਾਤਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੱਲੇ ਸਿੰਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਬਾਇਓਂਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਦਾ ਟॉप ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਿਸ ਇਟ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ, ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਦਾ ਬੋਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਪਵਰਡ। ਤਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਥੱਲੋਂ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਦਾ ਬੋਟਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ greater than at the top, every object submerged in a fluid feel an upward buoyant, ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਮਰਜਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਥੱਲੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉੱਪਰਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੱਟ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਯੋਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਯੋਂਸੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ। ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਫਲੂਇਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬॉल ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ। ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗਾ ਫਲੂਇਡ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਊਗਾ ਫੋਰਸ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਊਗੀ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਆਫ 에ਅਰ ਇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵੇਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਵੇਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਨ ਵੇਟ 250 ਨਿਊਟਨ, ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 250 ਨਿਊਟਨ ਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੇਟ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 600 ਨਿਊਟਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦੈਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ 600 ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 250 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 600 ਵਿੱਚ 250 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 350 ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 350 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਫਲੋਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੈ 350, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ, ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓਨ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਸ਼ਿਪ ਮੇਡ ਆਫ ਆਇਰਨ ਫਲੋਟ, ਅ ਸ਼ਿਪ ਮੇਡ ਆਫ ਆਇਰਨ ਫਲੋਟ ਵਾਈਲ ਐਨ ਆਇਰਨ ਨੀਡਲ ਸਿੰਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਨੀਡਲ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਲੋ ਫਰੋਮ ਵਿਦਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ, ਆਇਰਨ ਨੀਡਲ ਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਨੇਲ which is compact, compact मतलब कि ये dense हैगी ज़्यादा है, आपस सारे पार्टिकल एक तरह के जुड़े हुए हैगे है,
खाली थां है नहीं, होलो है नहीं विचों ये। द वेट ऑफ वाटर डिसप्लेस बाय इट इज़ मच लैस, मतलब इन्हें पानी की कीता बहुत घट डिसप्लेस किया, दैट्स वाई बायोंसी फोर्स लगी नहीं, तार के की होगी ये चीज़ डुब गई, क्योंकि जिन्ना पानी डिसप्लेस होगा बेटा उन्ना ही फोर्स लगाऊगा, क्यों ना बायोंसी फोर्स लगूगी अपनी, तो जिन्ना पानी डिसप्लेस होगा उन्नी जो फोर्स लगूगी तो वो चीज़ की हो जूगी फ्लोट कर जूगी। जे बायोंसी फोर्स जे मान लो वेट डिसप्लेस घट होया तो बायोंसी फोर्स घट लगूगी तो वो चीज़ की हो जूगी डुब जूगी। सिंपल जी, अगे चलते हैं आप। हुण अगे एक टर्म आ जाती है सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी का मतलब की है, कहते इट इज़ द पॉइंट ऑफ बॉडी वेयर द फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट्स। कहते एक यह पॉइंट है जिथे फोर्स ऑफ बायोंसी की करती है, एक्ट करती हैगी है वो बॉडी के उत्ते। इट आलवेज द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द डिसप्लेस लिक्विड, मतलब की है ये ज़्यादातर कितनी होंगी सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द डिसप्लेसड लिक्विड, जो लिक्विड डिसप्लेस होएगा वो सेंटर ऑफ ग्रैविटी से होंगी, जिमें कि अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। कि अपवर्ड फोर्स जी बायोंसी लगूगी कि होगी वो वेट ऑफ बॉडी दे, तो फोर्स ऑफ बायोंसी कि हो गया M × G। ठीक है जी, अगे जानते हैं आप ये बारे होर डिटेल दे विच। देखो जी ये क्लीयर कट दिखाया गया, एक आ बोट हैगी है, ठीक है ऑब्जैक्ट है जो अंडर वाटर है, तो यार पॉइंट है जिहदे विच की लग रही है फोर्स बायोंसी लग रही हैगी है, तो जो ये फ्लोट कर रही है। ठीक है जी, द पॉइंट थ्रू विच द फोर्स ऑफ बायोंसी इज सपोज टू बी, सपोज मानते हैं इस पॉइंट इस जिहदे पॉइंट लगी नहीं फ्लोट कर पा रही है, उन्होंने बोलेंगे आप सेंटर ऑफ बायोंसी। अब अगे चलते हैं जी। आ देखो इस केस दे विच की हो रहा है, कहते जी सेंटर ऑफ ग्रैविटी हैगी है इस बोर्ड की कितने इस पॉइंट पर है, तो सेंटर ऑफ बायोंसी कितने होगी इस पॉइंट पर। एवं दोनों की हो गई एक अलग अलग एक्सिस के उत्ते होगी, का एक्सिस होगी का एक्सिस होगी, ये की हो रही है बॉडी की हो रही है एक तरह की, ये की हो रही है क्लॉकवाइज टर्न हो रही हैगी है, जो कि अगे अगे जे मान लो ये बराबर नहीं आउंदियां, ठीक है, ताकि एक दो तरह की फोर्स लगती है, एक तो होंगी रिस्टोरिंग फोर्स, एक होंगी ओवरटर्निंग फोर्स। अगे आप जानांगे की चीज़ हैगी है, तो जो अनबैलेंस हो जाती है तो यह की जाती किसकी पानी च डुब सकती हैगी है, तो दोनों का बैलेंस होना एको एक्सिस से होना जरूरी है जो आप स्टेबल लैके आना इनू। तो अगे जानते हैं जी। हाँ जी, हुण अगे टर्म आ जाती है मैटा सेंटर। मैटा सेंटर की चीज़ हैगी है, कहते एक आ बॉडी है, देखो ध्यान नाल, जिहदे विच आ बायोंसी फोर्स लगी होंदी है, ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी इस बॉडी का, तो आह एक पॉइंट है जिन्होंने बोलते हैं मैटा सेंटर। ये इत्थों नहीं पता लगूगा, ये उदों पता लगूगा कहते वैन ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज ए गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिसप्लेसमेंट। जो स्मॉल एक एक्सिस होगी अपनी नॉर्मल एक्सिस होगी, ठीक है जी, जो माड़ा जा ये टिल्ट करूगी इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की इन्हें टिल्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो टिल्ट किया तो आ वाली एक्सिस एक नवी जी एक्सिस बनी एंगुलर एक्सिस बनी है इन्होंने की मीट करूगी, जिस पॉइंट पर मीट करूगी उस पॉइंट में कहांगे आप मैटा सेंटर। की कहांगे जी मैटर सेंटर। पहला एक्सिस आ सी नॉर्मल एक्सिस, जो एक पर्टिकुलर एंगल से एक छोटे स्मॉल एंगुलर डिसप्लेसमेंट हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आ वाली एक्सिस जी बायोंस फोर्स हैगी तो इत्थे लगी जाती हैगी है, तो जो ये उपर आके इत्थे मैच की जिस पॉइंट आके कट होगी उस पॉइंट में बोलांगे मैटा सेंटर, ये पॉइंट में बोलांगे मैटा सेंटर। ठीक है जी, अगे चलते हैं आप। हुण देखो ये भी दिखाया है, हुण थोड़ा डिटेल दस्या हुआ थ्योरी पॉइंट आउट ना, द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी स्टार्ट ऑस्किलेटिंग, मतलब बॉडी की होगी एक तरह की हिलन जुलन लग गई, उन्होंने ऑस्किलेटिंग बोलते हैं। वैन द बॉडी इज टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल मतलब ज़्यादा एंगल नहीं, ज़्यादा एंगल होगा तो बॉडी मेरी की हो जूगी ओवरटर्न हो जूगी तो पानी में डुब जूगी। बहुत ही छोटा एंगल होंगे जो आप किश्ती दे रहे हैं हिलदी जुलती रहती है, स्मॉल एंगल होंगे जो टिल्ट करता है। इट इज़ अ पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बायोंसी, जी लाइन ऑफ एक्शन जी पिछे आप देखी सी पिक के विल मीट द नॉर्मल एक्सिस, जी मैं सीधी दिखाई सी नॉर्मल एक्सिस वो की कर रही सीधा मीट कर रही सी इस पॉइंट पर, उन्होंने बोलांगे मैटा सेंटर। ठीक है जी, हाँ जी, इत्थे जो दिखा रखा है जी तो लैके M तक डिस्टेंस है, इन्हों बोलते हैं मैटासेंट्रिक हाइट, जो कि अगे टर्म आऊगी ये की होंगी दसते हैं आप। हाँ जी, आ टर्म आ गई अपनी, इन्हों बोलते हैं मैटासेंट्रिक हाइट। उस मैटा सेंटर ये है मैटासेंट्रिक हाइट। मैटासेंट्रिक हाइट का मतलब होंगे है मैटा सेंटर तो लैके जिस पॉइंट पर वो बायोंसी फोर्स ने कट किया नॉर्मल एक्सिस नूं, उस पॉइंट तो लैके जी तक जो डिस्टेंस होगा उन्होंने बोलांगे मैटासेंट्रिक हाइट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ग्रैविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जी बॉडी की आ रही है फ्लोट कर रही है, एंड द मैटा सेंटर आई मीन जी तो लैके आ मैटा सेंटर तक द डिस्टेंस GM, इन्हों GM बोल देंगे MG बोल देंगे, इन्हों बोलते हैं मैटा सेंट्रिक हाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। ठीक है, तो डायग्राम भी छोटी जी बना लो।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ फाइंड आउट करते हैं। जो कहते इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मैटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पिछे पढ़ के रहे आप कहते वी कैन फाइंड दिस हाइट बाय टू मैथड। पहला मैथड है एनालिटिकल मैथड, तो सिंपल याद रखियो GM पा लो या MG पा लो, यह है I अपॉन उल्टी A है, उल्टी ए बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर, पानी के या फ्लूइड के हैगी है वो क्या की जा रही है, जिन्नी बॉडी मेरी पानी के हैगी आ उन्होंने बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर। I है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो B तो G है बायोंसी तो अपनी ग्रैविटी, बायोंसी दिस इज अ बायोंसी फोर्स एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ दिस ऑब्जैक्ट, या डिस्टेंस है उन्होंने बोलेंगे BG। ठीक है जी, ये पहला है एनालिटिकल मैथड जिन्हें आप करेंगे मैटासेंट्रिक हाइट फाइंड आउट करांगे। उस तो गल आती हैगी है इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के केस के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या स्टेबल, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ बॉडी के उत्ते थोड़ा बहुत एंगल के क्लॉकवाइज मूवमेंट लगती हैगी है वो बॉडी आपकी पुरानी पोजीशन से पहुँचती है या नहीं पहुँचती, वो चीज़ दसदा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज मतलब जी बॉडी डुब चुकी है, मतलब पूरी पानी के विच हैगी है, उन्होंने बोलेंगे सबमर्ज्ड बॉडी। द स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ GM, मतलब सेंटर ऑफ ग्रैविटी बॉडी की फाइंड करनी है तो M फाइंड करना है। ये दो पैरामीटर दसणगे भी मेरी जी बॉडी है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। ठीक है जी, तो जिहदे पहला गल करांगे आपां स्टेबल, अनस्टेबल ते न्यूट्रल। तो देखते हैं आपां, तो देखो जी एक अपनी एक तरह की एक बैलून हैगा, ये समझने वास्ते आप बैलून समझते हैं, एक बैलून हैगा जिहदे विच की हैगी है आपां उहदे बैलून दे विच थल्ले कोई वेट बनता तो पानी विच की डिप करता, जो पानी डिप करांगे जी हैगी है वो पॉइंट है थल्ले आ गया, तो बायोंसी का पॉइंट है उपर चला गया, जी फोर्स ऑफ बायोंसी हैगी जो वेट की है मेरा थल्ले लग रहा है। तो इस केस के मेरी बैलून होगा कि होगा मेरा स्टेबल होगा, क्योंकि वेट की है थल्ले ज़्यादा है। जे मान लो थोड़े पैरों के नाल मैं एक पत्थर बन के हुण पानी सिटदा तो तुसीं सीधा थल्ले जाओगे। ठीक है जी, थोड़ा बॉडी पूरी स्टेबल रहूगी। ओके जी, तो थोड़ी फोर्स ऑफ बायोंसी लगूगी सीधा उपर, जो कि पॉइंट उपर है तो जी थल्ले हैगी है। ये केस किहड़ा है अपना सबमर्ज का केस है, याद रखियो। तो जो G तो B इक्को पॉइंट ते मिलते हैं उन्होंने बोलते हैं न्यूट्रल स्टेज, न्यूट्रल। तो थर्ड वन की है जिहदे जी उपर रहती, मतलब वेट आप उपर बनता इस बैलून के तो बायोंसी थल्ले होगी, तो एवं जी उपर होगी तो बायोंसी थल्ले होगी, इस केस होगा अनस्टेबल। ये तिने इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट बना डायग्राम भी बना लो तो नाना नोट कर लो जी वाले पॉइंट। वो पुछते होंगे भी जी तो बी जो मैच करन तो किहड़ा हुंदा न्यूट्रल, जो जी थल्ले हो गए बिलो दैन फोर्स ऑफ बायोंसी का स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इदां दे क्वेश्चन आउणगे, तुसीं इहनूं प्रॉपर तरीके डायग्राम बना के नोट कर लिओ। अब बाकी आप इहदे बारे जानते हैं डिटेल दे विच, थ्योरी पढ़ते हैं दी। हाँ जी, फस्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं जो पिछले डायग्राम देखिए आप ये दस रहे स्टेबल का कहते जी इज़ बिलो बी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रैविटी जी थल्ले है, वेट थल्ले बनया हुआ है तो फोर्स ऑफ बायोंसी की उपर है। फॉर टोटल इमर्ज्ड बॉडी द G एंड B इज़ फिक्सड, द स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ G एंड B। लेट अ बैलून कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन एयर, मतलब हवा च है, हवा भी तो फ्लूइड हैगी एक तरह की, वेयर W इज़ द वेट ऑफ द बैलून एंड FB इज़ द FB इज़ द बायोंसी फोर्स। फॉर इक्विलिब्रियम FB इक्वल टू की होगा W दे। ठीक है जी, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आने, स्टेबल लेके आने हैं आप। अनस्टेबल देखो कहते G इज़ अबव B, मतलब G की होगा ऊपर चला गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया तो फोर्स ऑफ बायोंसी नालों। ठीक है जी, एक ही है कहते इफ ए बैलून इज़ स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन W एंड फोर्स भी प्रोड्यूस ए कपल, मतलब कपल की वो एक मूवमेंट आऊगी, कपल मतलब मूवमेंट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगी, सो दैट द बॉडी डज नॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, द बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन से वापस नहीं आऊगी, उल्टा पलट जूगी, जो पलटूगी वो उन्होंने बोलते हैं ओवर टर्निंग। ठीक है, एंड द बॉडी इज सेट टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, उस बॉडी में कहांगे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल के केस हम दसा जो G एंड B आर एट द सेम पॉइंट, इफ द बैलून इज गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन देयर इज नो कपल प्रोड्यूस, जो कोई कपल प्रोड्यूस नहीं होता सिंस W एंड FB इज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ठीक है, द बॉडी इज सेट टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल। हुण गल आई पहला केस है सबमर्ज्ड, हुण गल किहड़ा आ गई अपना केस किहड़ा आ गया अपना फ्लोटिंग का, मतलब की है फ्लोट कर रही है, तैर रही है कोई बॉडी,
उस केस दसो भी स्टेबल अनस्टेबल तो न्यूट्रल किदां ही बनूगी चीज़, ठीक है, किदां समझांगे आपां इहनूं। तां देखो बड़ा ही वधिया एग्जाम्पल दिता है जिन्होंने जल्दी समझोगे। स्टेबल कहते जो फ्लोटिंग करूगी, सामने किश्ती है, बड़ा देखो ध्यान नाल, ये किश्ती दे विच की हो रहा है, आ किश्ती जी जी हैगी है उपर हैगी अपनी, ठीक है जी, एंड जिहड़ा आ पॉइंट बी है थल्ले है, ये स्टेबल हैगी है, ठीक है। स्टेबल मतलब इफ द पॉइंट एम इज़, इत्थे गल कीती है एम की हुंदा अपना उपर वाला पॉइंट हुंदा, ठीक है जी। इफ द पॉइंट एम इज़ अबव जी, मतलब जिवें आ दिखा रहे हैं कि अपनी आ जी लगी सी, आ फोर्स ऑफ बाउंसी हिल गई, इत्थे मीट कर गया, आई मीन जे पॉइंट मेरा एम इज़ अबव दैन जी होगा, तो जी फोर्स लगी होंगी रिस्टोरिंग, आ रिस्टोरिंग की करूगी, हैल्प करती है वापस उन्होंने पोजीशन से लेके आने वास्ते, रिस्टोरिंग मूवमेंट, ठीक है जी। इन्हू बोलांगे स्टेबल कंडीशन। कहते अनस्टेबल की हुआ इफ द पॉइंट एम इज़ बिलो जी, मतलब की हो गया जे मान लो एम पॉइंट मेरा सेंटर पॉइंट थल्ले आ गया जी नालों, ठीक है, तो नाल दी ना की हो जू मेरी किश्ती हो जूगी ओवरटर्न हो जूगी, तो ओवरटर्न करके की है एक कपल प्रोड्यूस होगा इत्थों आए ऐदा, ठीक है, क्लॉकवाइज का डबल कपल, तो ये वापस नहीं आ पाऊगा, तो ये की हो जूगा अनस्टेबल। तो पेपर कुछ मनता होंगे भी ओवरटर्निंग मूवमेंट ओवरटर्निंग की मूवमेंट हैगी वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ओवरटर्निंग मूवमेंट मतलब कभी भी होंगी है फ्लोटिंग बॉडी के उत्ते तो अनस्टेबल है, रिस्टोरिंग मूवमेंट जो होंगी है वो की स्टेबल है। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट नोट कर लो। तो इफ द एम मीट एट द जी, मतलब एम तो जी दोनों एक पॉइंट से मीट कर जाते हैं, वो कि कंडीशन बनती है न्यूट्रल कंडीशन, जिवें कि खड़ी है अपनी चीज़ एम तो जी, जिवें इस पॉइंट से आप कह सकते हैं भी स्टेबल का लिखा हुआ है सिंपल, एक न्यूट्रल कंडीशन खड़ी हैगी है ना, वो कोई मूवमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है जी। देखो सिंपल दस्या वही थ्योरी वैन एम इज़ अबव जी, ठीक है जी। इफ द फ्लोटिंग बॉडी इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सेंटर ऑफ बायोंसी शिफ्ट फ्रॉम बी टू बी वन, पिछली डायग्राम देखे आप, द बायोन फोर्स एफ बी थ्रू द बी वन एंड डब्ल्यू प्रोड्यूस ए कपल एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, एंड हैंस फ्लोटिंग बॉडी विल रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो रिस्टोरिंग मूवमेंट करके वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ गई ड्यू टू दिस एंटी क्लॉकवाइज, ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। हुण देखो जिवें आ भी दिखाया हुआ बड़ी एग्जाम्पल हैगी है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी। देखो जी एक जिहड़ा तैराकी हुंदा हैगा वो गैस अपना ऑक्सीजन गैस बन के जाता है, तो पुछते होंगे पॉजिटिव बायोंसी की होंगी है, कहते जो बायोन फोर्स इज़ ग्रेटर दैन, जी बायोन फोर्स थलों लगी होंगी उपर इज़ ग्रेटर दैन वेट, सो द ऑब्जैक्ट फ्लोट, जो ऑब्जैक्ट का वेट है जा लग रही हैगी है तो वह होगी पॉजिटिव। न्यूट्रल कदों होगी बायोन फोर्स इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जैक्ट, जो तैर रहा है बंदा तो फोर्स ऑफ बायोंसी लग रही है ये बराबर होगी, इन्हू न्यूट्रल कहांगे। तो नैगेटिव कदों कहांगे जो बियॉन्ड फोर्स जी थलों लगनी सी वो घट लग रही हैगी है, तेरा वेट ऑफ द ऑब्जैक्ट है वो ज़्यादा है, तो यह होगी अपनी नैगेटिव। तो तीन टर्मा वो दो बारी क्वेश्चन आया IES के क्वेश्चन आएगा भी नैगेटिव बायोंसी की होंगी है, तो वो क्लिक नहीं कर पाता, तो बायोन फोर्स इज़ लैस दैन वेट ऑफ द ऑब्जैक्ट, तो वह की हो थले डुब जूगी, क्योंकि थलों फोर्स लगूगी तो बॉडी उपर आऊगी, थलों फोर्स ही नहीं लग रही तो उपरों फोर्स ज़्यादा लग रही है, बॉडी का वेट ज़्यादा है तो की करूगी वो डुब जूगी। अनस्टेबल जिवें कि आप पिछे देखा सीगा वैन एम इज़ बिलो जी, जो मेटा सेंटर थले चला गया, इफ द फ्लोटिंग बॉडी इज़ गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैन फोर्स ऑफ बायोंसी एंड वेट प्रोड्यूस ए कपल एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब डबल हो गया तो ओवरटर्निंग हो जूगी, इस ओवरटर्निंग करके की होगी मेरी फ्लोटिंग बॉडी की है डुब जूगी, तो इन्हों बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब आधी पुरानी पोजीशन से वापस पहुंची नहीं बॉडी, तो बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हुण इत्थे गल की जाती है कहते डिफरेंट मैथड है याद रखियो, ठीक है जी। जिवें कि कहते डिटरमिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, इस चैप्टर में मेन तो ये मेटासेंट्रिक हाइट करनी होंगी हैगी, ठीक है जी। मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग वैसल कैन बी डिटरमाइंड इफ द एंगल टिल्ट अपना थीटा कॉज्ड बाय मूविंग ए लोड P प्लेस्ड ओवर द सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, जिवें कि W होगा टोटल वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, मतलब कि वेट ऑफ द बॉडी प्लस वेट ऑफ द लोड जो लगी जाता उत्ते, मतलब वेट ऑफ लोड मतलब उस बॉडी के उत्ते कोई कंटेनर रखा हुआ है, मान लो एक शिप है, शिप के उत्ते कंटेनर जा रहा है ना, वेट ऑफ द बॉडी शिप का वेट, जो लोड वो कंटेनर रखा हुआ वह वेट, दोहां जोड़ांगे उन्होंने बोलेंगे टोटल वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है जी।
ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ weight ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ weight। ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਬੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਬਿਓਂਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਬਿਓਂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੋਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਿਲਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ GM ਕੱਢਣੀ ਹੈ। GM ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ GM ਬੋਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਇੱਧਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਡ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹ P cos ਥੀਟਾ ਬਣਿਆ ਲੋਡ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਆ ਟਰੈਵਲ x ਹੈਗਾ, ਇਹ P × x ਅਪੋਨ W, ਜਿਹੜਾ ਆਹ G ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹ W, ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ GM ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ GM ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ W1D W × tan ਥੀਟਾ। W ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ weight of vessel including, ਠੀਕ ਹੈ। G ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ center of gravity of vessel and center of buoyancy। B W1 ਕੀ ਹੈ movable weight, ਜਿਹੜਾ ਆਹ weight ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਵਨ x, ਇੱਥੇ x ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ W1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ weight ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ weight ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੂਵੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ GM ਕੱਢਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ W1 × D × W + tan ਥੀਟਾ। ਮੂਵੇਬਲ ਜਿਹੜਾ weight ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ x ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ D ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, x ਹੈਗਾ ਇਹ, W ਜਿਹੜਾ weight ਹੈਗਾ ਵੈਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੂਵੇਬਲ weight, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ x, ਉੱਥੇ x ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ D ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ x ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਈ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਲੋਟ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਥਿੰਗ ਫਲੋਟ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਸੋਇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੈਸ ਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਿੰਗ ਫਲੋਟ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਫਲੋਟ ਜਿਹਦਾ weight ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਦਾ ਬਿਯੋਂਡ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ weight ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦ ਥਿੰਗ ਫਲੋਟ ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸ਼ੇਪਡ ਸੋ ਦੇਅਰ weight ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ weight ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ਿਪ ਦਾ weight ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਆਫ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਆਫ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 0.5 ਫਲੋਟ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 0.75, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਲੌਕ ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ 0.5 ਤੇ 0.4, ਮਤਲਬ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, 0.5 ਇਹਦੀ B ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਪਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਮੈਟਾਸੈਂਟਰਿਕ ਹਾਈਟ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ H ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, H ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ GM, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ GM ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ 1 ਮੀਟਰ 0.5 ਤੇ 0.4 ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਡੈਪਥ ਹੈਗੀ 0.4 ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ H ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟਰਮ। ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਓਨਲੀ 0.75, ਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ weight ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 0.75 × 9.81, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7.36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ weight ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ, weight ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਕਿਹਦੇ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਦਾ ਵੇਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ weight ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ weight ਇਨਟੂ
वॉल्यूम तो स्पैसिफिक वेट कितना कढ़िया आप लकड़ का 7.36 तो वॉल्यूम कितना है 1 0.5 ਤੇ 4 जो कि अपना वॉल्यूम दिता हुआ है अन्नी वैल्यू कितनी होगी 1.47 किलोमीटर कहते लैट एच इज़ द डेप्थ ऑफ इमर्शन मतलब मान लो आ जो डुब्बी भी हैगी है क्योंकि फ्लोट कर रही है पूरी डुब्बी तो समझ तो है नहीं की तो जी एच हैगी है एच मान लो ठीक है जी फॉर इक्विलिब्रियम वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक जिन्ना वुडन ब्लॉक का वेट होगा उन्ना ही पानी डिस्प्लेस होगा तो कहते देखो जी 9.81 ग्रैविटी 1 ठीक है जी लेंथ हैगी है 0.5 की विड्थ हैगी तो एच की है जिन्नी ये डुब्बी हुई है पानी के इतने ध्यान रखो पैरामीटर का एच का ठीक है जी इतने 0.4 नहीं लोगे इतने 0 कला एच लोगे जो पानी के है इक्वल टू की होगा 1.47 जो कढ़ा वेट ऑफ वुडन ब्लॉक जो डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी बन के आऊगी अपनी 0.3 मीटर बाकी चैक कर लो आपके वालों कैलकुलेशन का ठीक है जी अगे देखते हैं आप अगे की अगे जो चलते हैं आप दसते है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बेयोंसी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बेयोंसी मतलब इतों लैके आ डिस्टेंस है सेंटर ऑफ बेयोंसी डिस्टेंस है ये कि निकलूगा अपनी अपनी जी वैल्यू निकली है कि निकली है एच की 0.3 का हाफ कितना कितना होगा 0.15 मतलब इतों लैके डिस्टेंस कितना है 0.15 तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितना है ओ जी मतलब इतों लैके आ वाला तो 0.4 का किया मैं हाफ किया तो सेंटर से आ गए जी आ सेंटर से आ गए बॉडी के तो कहते बी जी कढ़ना बी तो लैके जी तक ओ जी दिस वन दे विचों आपां जिहड़ा ओ एम हैगा वो की करांगे माइनस करांगे ओ एम मतलब मैटर सेंटर तक तो इत्थे अपनी गल कीती जांदी है 0.2 माइनस इत्थे ओ बी आऊगा सॉरी 0.2 माइनस 0.15 मीटर तक कितनी वैल्यू होगी 0.05 मतलब ये विचारे डिस्टेंस जो आ गया बी जी के विचारे डिस्टेंस जो आ गया 0.05 मीटर आ गया हुण आलसो बी एम की अपना बायोंसी तो मैटर सेंटर के हाइट के डिफरेंस है यदा फॉर्म लगी आई बटा वी आई की होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सैक्शन का की होंगे बी डी क्यूब बाय 12 लगाता जी तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय वुडन ब्लॉक कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वाटर ने तो 1 × 0.5 तो एच आ वाली लेनी है जी 3 कड्डी आप क्योंकि आ डिस्प्लेस किया है बाकी तो बाहर ही उपर ही फिरता है तो 0.3 आ वैल्यू आ गई तो जो आई बाय बी किया कि आ गई 0.069 मीटर तो देयर फोर मैटर सेंटर हाइट की होंगी अपनी जी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी जी तो बी एम कि कढ़िया से आप कढ़िया पिछे आप 0.069 मीटर ठीक है जी तो बी जी का कढ़िया आप पिछे आ 0.05 तो कढ़िया से इतने माइनस करा आप कि वैल्यू आ गई अपनी जी तो लैके एम तक मैटर सेंटर तक कि आ गई 0.019 मीटर हूँ इतने पॉजिटिव वैल्यू है आई मीन की कंडीशन की है स्टेबल है ठीक है जी जे मान लो ये नैगेटिव आ जाती तो यह अनस्टेबल हो जाता जो कि आप अगले केस देखा ठीक है जी ओके हूँ देखो अगला केस की आता पै एक तरह का सिंपल केस है ये कहते सॉलिड सिलेंडर है 2 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन हाइट इज फ्लोटिंग ठीक है आ हाइट हैगी है इज फ्लोटिंग इन वाटर विद इट एक्सिस वर्टिकल ठीक है जी वर्टिकल एक्सिस अबाउट फ्लोट कर रही है इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज कितनी हैगी 0.65 एंड फाइंड इट मेटासेंट्रिक हाइट स्टेट आल्सो वेदर द इक्विलिब्रियम इन स्टेबल और अनस्टेबल ठीक है जी ये दसना आप और आऊगा थे साइज ऑफ सॉलिड सिलेंडर है 2 मीटर डायमीटर 2 मीटर हाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी दी भी हैगी है तो आ अपना जो पानी में है ये है अपना एच आप एच करना है इधर लिखा हुआ है आप फाइंड आउट करना है तो कहते वेट ऑफ पिछले केस वांगू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड वेट ऑफ वुडन ब्लॉक तो 9.81 आ एरिया सीधा लाता π/4 इंटू डी स्केयर सिलेंडर अपना ये है सर्कुलर है इंटू एच ठीक है जी आह तो ये एच जोड़ा है आप फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू 9.81 0.65 की स्पेसिफिक ग्रेविटी π/4 इंटू डी स्केयर इंटू 2 मतलब पूरी वुडन ब्लॉक का ये सीधा फॉर्मूला पुट करता है डायरैक्ट तो एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने 1.3 आ गई ठीक है जी तुम यार पैरामीटर पिछले चेक कर सकते हैं वैसे एरिया जो लेता है π/4 इंटू डी स्केयर सर्कुलर है ठीक है जी अगे की किया इन्होंने सेंटर ऑफ बायोंसी फ्रॉम ओ ठीक है जी ओ मतलब इस पॉइंट तो ओ तो लैके बी तक 1.3 का कढ़िया हाफ किया तो ओ तो लैके जी तक जी पूरी हैगी अपनी ऑब्जैक्ट है सर्कुलर सिलेंडर ये हाफ किया तो 1 आ गया ठीक है जी इतों
डिस्टेंस इतों डिस्टेंस 0.65 आ गया। उमें आप BG कढ़ांगे 1 माइनस 0.65 किया तो कितना गया 0.35। उमें BM कढ़ांगे आप आई की वैल्यू ध्यान रखियो सर्कुलर है तो π/64 इंटू जो भी D है डायमीटर है 4 करा आ वैल्यू आ गई जी। वॉल्यूम कर लाँगे आप तो जो इनू डिवाइड करा तो BM की वैल्यू आ गई तो GM कढ़ने वास्ते BM माइनस BG तो वैल्यू की आ गई अपनी माइनस आ गई। मैं क्या सी नैगेटिव साइन इंडीकेट दैट मैटा सेंटर इज़ बिलो मैटा सेंटर की है अपना बिलो द सेंटर ऑफ ग्रैविटी सेंटर ऑफ ग्रैविटी तो थले आ गया तो देयरफॉर द सिलेंडर इज़ अनस्टेबल मतलब आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की इत्थे कंडीशन समझते हैं। ठीक है जी पिछला स्टेबल सीगा ये अनस्टेबल हो गया। हुण अगे एक टर्म आ जाती है ये टॉपिक के टाइम पीरीयड ऑफ ऑस्किलेशन। ये टाइम पीरीयड बहुत छोटा टॉपिक है। सिंपल टाइम पीरीयड मतलब होंगे जो भी कदे क्लॉकवाइज मूवमेंट लगूगी शिप के उत्ते तो वह की करती है टिल्ट करती है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है तो जो रिस्टोरिंग मूवमेंट लगती है वो वापस अपनी पोजीशन पर आती है। जो टाइम वो टिल्ट करने तो वापस आने लगा रही है उन्होंने बोलते टाइम पीरीयड ऑफ ऑस्किलेशन। यह सिंपल फॉर्मूला याद रखियो 2π√k² G सेंटर ऑफ ग्रैविटी इंटू GM तो के की अपना रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि सौंच पढ़े है। ये सिंपल गल दसी भी कहते जो GM की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि यूनिवर्सली टाइम दे तो टाइम ऑस्किलेशन होगा घट जाऊगा अपना। ठीक है जी ये याद रखियो आई मीन इट रिजल्ट इज फ्रीकुएंट ऑस्किलेशन फटाफट हो जूगी वापस आ जाती है जो कि बड़े शिप्स के केस होंगे है। ठीक है जी 9.81 आ जूगा पाई की वैल्यू पता ही है के रेडियस ऑफ गायरेशन है दिता होगा अपनों तो GM तुसी मतलब और मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है जी ये दो केस है जो पेपर से ज़्यादा पूछने GM की वैल्यू वास्ते भी जो पैसेंजरशिप होगी तो GM की जी वैल्यू होंगी है जो पेपर नहीं दी तो लवोगे 0.6 तो लैके 1 मीटर तो फॉर वारशिप जी वारशिप होंगी है लड़ाई वास्ते होंगे है तो वो वास्ते 1 तो लैके 1.5। ठीक है जी इत्थे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होंदा है। आई होप थोड़ा समझ आया होगा। जिस भी बच्चे कोई डाउट होगा मैंने पूछूगा तो हुण तो मैं थोड़ा ही रिक्वेस्ट कर रहा है भी डेली के डेली नोट्स बनाते रहो तो डेली पढ़ते रहो। एक अद्धे दिन के मैं थोड़ा पेपर पाऊँगा थोड़े WhatsApp से सेंड करूँगा ताकि तुम FM के क्वेश्चन वध तो वध इस चैप्टर से लगा सको। ठीक है जी थैंक यू।